अच्छा नहीं है, नहीं है, अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? जी मैं ठीक हूँ। मीरब और रिमशा, बेटा मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? कैन यू हियर मी बेटा? And why still we have just 4 students? ओके जी, आवाज़ आ रही है आपको? तो स्टूडेंट्स बहुत कम है, लेकिन क्या बात है, क्यों नहीं आए अभी तक स्टूडेंट्स? मैसेज कर दीजिए ग्रुप में, बुला लीजिए स्टूडेंट्स को ताकि हम लेक्चर स्टार्ट करें।
वालेकुम अस्सलाम एमन राहत एंड नेहा। वालेकुम अस्सलाम फातिमा नबीला। स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं बेटा, मैंने लेक्चर स्टार्ट करना है। केस स्टडी मैंने स्टार्ट किया था, केस स्टडी आपको पढ़ा रही थी। कहाँ गया? चलिए, काफ़ी वेट कर लिया है मैंने। मैं लेक्चर अपलोड कर रही हूँ। मीनवाइल जो भी कुछ स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर लेते हैं तो ठीक है। बहरहाल मैं लेक्चर अपलोड करने लगी हूँ। मैं ठीक हूँ जबीरिया, थैंक यू। लेक्चर अपलोड हो रहा है। इट माइट टेक 2 to 3 minutes, then we will start. किसी स्टूडेंट को कोई 5 पेपर नहीं मिले टीचिंग लर्निंग के? किसी सीनियर क्लास फेलो से आपने कांटेक्ट नहीं किया? किसी को नहीं मिले? हिस्ट्री तो मुझे याद है थोड़ी बहुत हमने स्टार्ट की थी। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया था आपको कि बिजनेस से रिलेटेड भी कुछ एग्जांपल्स लेके
اور اس کے علاوہ زیادہ تر جو میری ایگزامپلس تھیں وہ میں نے آپ کو بعد میں بتایا کہ ہیلتھ کیئر کے جو پوائنٹ آف ویو سے ہم آپ کو ایگزامپلس دیں گے. اچھا پرپس بھی اسٹارٹ کیے تھے مجھے یاد ہے کیس اسٹڈی کے. سگنیفیکنس آئی تھنک یہ نہیں کیا تھا مجھے یاد آ رہا ہے. آئی تھنک کہ یہیں تک ہم نے پڑھا تھا. پرپس آف کیس اسٹڈیز پڑھے تھے. سگنیفیکنس جو ہے case studies are a form of social science research. However, instead of using a survey or some other form of experiment, an occurrence or occasion will be studied. To do this, a research or researchers will collect information about a particular individual or group and then present it. اچھا امپورٹنس کیا ہے, سگنیفیکنس کیا ہے کیس اسٹڈیز کی؟ یہ بیسیکلی سوشل سائنس ریسرچ ہے. اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ سرویز کیے جاتے ہیں, ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں اس طرح سے دوسری ریسرچز میں کیے جاتے ہیں, بلکہ دس از اباؤٹ دا اسٹڈی آف اینی اکرنس اینی اوکیزن, یعنی ایک پرٹیکولر کسی اوکیزن کے بارے میں جو ہے اسٹڈی کیا جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو اپنے نرسنگ پوائنٹ آف ویو سے لاسٹ لیکچر میں بھی ایگزامپلس دی تھی کہ ظاہر ہے ایک پیشنٹ ہے, کیس اسٹڈیز ہمیں پریزنٹ کرنی ہوتی ہے کس پر, پیشنٹس پر کرنی ہوتی ہے نا, ان کی ڈیزیزز پر. تو وہ کیا ہے اس کے لیے آپ ایسا تو نہیں کر رہے ہوتے کہ پورے ہاسپٹل میں جو ہے اس طرح کے سیم پیشنٹس کے اوپر اسٹڈیز کنڈکٹ کر رہے ہیں, ان سے کوشچنئرس فل کروا رہے ہیں, سروے کر رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوتا. جو ہمارا ایک پرٹیکولر پیشنٹ ہوتا ہے, ویدر ہمیں ایز این اسائنمنٹ وہ اسائن کیا جائے یا پھر ہم خود اپنی مرضی سے جو ہے پیشنٹ سلیکٹ کریں, جو بھی پرٹیکولر ڈیزیز ہے اسی کے اوپر ہم نے پرٹیکولر وہ جو بھی ہمارا کیس ہے اسی کو ہم نے ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنا ہوتا ہے. جو ریسرچرز ہوتے ہیں پھر وہ اسی پرٹیکولر جو انڈیویجول ہے اس کے بارے میں, یا اگر ان کیس کوئی ایک پرٹیکولر ڈیزیز کے اوپر بات کرنی ہے تو اس کے ہم 4-5 پیشنٹس بھی لے لیتے ہیں سیم ڈیزیز کے, تو اس گروپ پہ اٹ ول ڈپینڈ کہ آپ کو اسائنمنٹ کیا دیا گیا. لیکن پرٹیکولرلی اسی اوکیزن, اسی اکرنس, اسی کیس کے اوپر ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے وہ ہم کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر ہمیں اسے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے. The results are then recorded only after the event has been carefully looked at and the information has been evaluated. The researcher is looking for a common thread or theme to prove or create their case. اب جو بھی ریزلٹس ہیں جب آپ نے ایونٹ ہیپن کا مطلب کہ جب ظاہر ہے آپ نے ساری انفارمیشن کلیکٹ کر لی اپنے پیشنٹ کے بارے میں, اس کی ڈیزیز کے بارے میں, پھر ہی آپ ریزلٹس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں نا. آپ نے اس کو انفارمیشن کو کلیکٹ کیا, اس کے بعد آپ نے انفارمیشن کو ایویلویٹ کیا, اس میں کہیں کوئی لوپ ہولز تو نہیں ہے. آپ کو پورا کیئرفلی پورا کیس جو ہے وہ اپنا پیشنٹ جو ہے اس کو آپ کو ایویلویٹ کرنا پڑے گا. آپ نے دیکھ لیا اس میں کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہے تو پھر اوبیسلی آپ کے جو ریزلٹس ہیں وہ آپ اپنا اس کو ریکارڈ کریں گے, اور پھر جو ریسرچر ہیں یعنی نرسز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, جس نے بھی کیس پریزنٹ کرنا ہے وہ پھر اپنا کیس جو ہے وہ پریزنٹ کرتے ہیں. فنکشن کیا ہے؟ ریسرچرز ول یوز کوشچنئرز, انٹرویوز اور mere observation to obtain information from subjects. اس کیس میں ویدر آپ کا ایک سنگل پیشنٹ ہے تو ظاہر اس سے بھی تو آپ سوال جواب پوچھیں گے نا, لیکن اگر گروپ آف پیپل ہیں کسی ایک پرٹیکولر ڈیزیز کے اوپر آپ کو اسائنمنٹ دیا گیا ہے, آپ نے پریزنٹ کرنا ہے اور گروپ آف پیشنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے, تو ایسی سچویشن میں جو ریسرچرز ہیں وہ کوشچنرز بنائیں گے, وہ یوز کریں گے, انٹرویو کنڈکٹ کریں گے, ان کی اپنی پرسنل آبزرویشن ہوگی بہت ساری چیزوں میں جس کے تھرو وہ جو انفارمیشن ہے اسے کلیکٹ کریں گے فرام ڈفرینٹ سبجیکٹس, یعنی جو آپ کے ڈفرینٹ پیشنٹس ہیں ان سے آپ تمام انفارمیشن جو ہے اس طریقے سے کلیکٹ کریں گے. After the information is composed, a narrative is created to give a synopsis of the study and its focus. It will clearly convey to the reader how the study was conducted and how the information was used. یہاں پہ تھوڑا سا ریسرچ کا ایلیمنٹ بھی ہماری جو پریزنٹیشن ہے اس کے اندر آ رہا ہے.
और ऑब्वियसली आप भी रिसर्च पढ़ चुके हैं तो ईजी हो रहा होगा आपको उन चीज़ों को समझना। एक मरतबा जब हमने, चाहे हमारा एक पेशेंट था या हमारे ज़्यादा पेशेंट्स थे, उनसे रिलेटेड हमने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया, अब उसे हमें कंपोज करना है, तरीके से कंपोज करना है। A narrative is created। जब वो सारी इंफॉर्मेशन हमने यानी ऑर्गेनाइज कर दी तो फिर हमारे पास एक सिनॉप्सिस बन जाता है स्टडी का, और जाहिर है उसका फोकस हमें समझ आ जाता है कि हमारी स्टडी का फोकस क्या है। उसमें क्लियरली फिर जब वो कोई भी पढ़ने वाला शख्स होगा उसको पढ़ने के बाद ये आइडिया हो जाएगा क्लियरली कि किस चीज़ के ऊपर स्टडी की जा रही है, हमारी रिसर्च का टॉपिक क्या है, हमारा सैम्पल साइज क्या है, और किस तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है। इस तरह की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो किसी भी रीडर को, पढ़ने वाले को क्लियर हो जाती है। Benefits case studies were used frequently in the early 1900s. Their primary purpose was to create, solidify, challenge, or prove theory. Case studies help to confirm what may have already been proven from previous research. जो केस स्टडीज़ थी वो बहुत फ्रीक्वेंटली 1900 में ही, 90s में ही यानी स्टार्ट हुई थी। जो उनका प्राइमरी मकसद था वो ये था कि कोई शख्स अपनी कोई नई थ्योरी जनरेट करना चाहता है, अपनी थ्योरी को प्रूव करना चाहता है, या किसी की थ्योरी को चैलेंज करना चाहता है, तो वो केस स्टडी के थ्रू सारी जो इंफॉर्मेशन है और सारा कुछ वो कलेक्ट करके प्रेजेंट करते थे। या फिर किसी ने अगर प्रीवियसली रिसर्च की हुई है, जो एक तरीक़ाकार भी आप सबको पता है, रिसर्च करते हैं लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी कंप्लीट नहीं होता। फिर क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर हम स्टडी करके अपना जो हमारा एक हाइपोथेसिस होता है उसे हम टेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम फर्दर रिकमेंडेशंस दे के जाते हैं, तो लोग उस प्रीवियस रिसर्च को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। Today, case studies are most often used in education and educational theory. Case studies are used to provide solutions to real-life situations, which is the primary reason they were brought to fruition. अच्छा, आजकल जो हमारी केस स्टडीज़ हैं ज़्यादातर एजुकेशन और एजुकेशनल थ्योरीज़ में इस्तेमाल होती हैं। जैसे मैंने आपको अपनी भी हमारी जो एग्जांपल दी कि केस स्टडीज़ जैसे रियल लाइफ सिचुएशन क्या है जो हम अपने पेशेंट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। हमारे पेशेंट्स हैं उनसे क्या है, उनकी उनकी रियल लाइफ स्टोरीज होती है ना, जो हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपनी केस स्टडीज़ में। तो यही प्राइमरी रीज़न भी है केस स्टडीज़ का कि ये हमारे पास अब कुछ फ्रूटफुल आउटकम लेके आने लगे हैं। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप एक पेशेंट के ऊपर स्टडी करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, उसके आउटकम आपके पास क्या आते हैं, उससे आपको पता लगता है कि किसी एक डिज़ीज़ में ये चीज़ें जो है पेशेंट की आपको नज़र आ रही होती हैं, हमने क्या क्या उसके लिए ट्रीटमेंट्स किए हैं। इसी स्टडी के दौरान नए नए साइन सिम्टम्स किसी डिज़ीज़ के आ सकते हैं, नई नई इंटरवेंशंस, थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस कोई जो है वो इनोवेट हो सकती हैं। तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए बड़ा अच्छा मेडिकल साइंस में जो है इसके बड़े बेनिफिट्स हैं अब केस स्टडीज़ के। Case studies may include an individual or a condensed group of people. They have oftentimes been criticized due to the concise number of people who are evaluated. Critics believe that a limited number of people cannot give a significant amount of information to conclude a hypothesis. And the research has also been called bias. अच्छा, एक ये इस पे यानी क्रिटिसिज्म है, क्रिटिक है। लोग ये कहते हैं कि जो केस स्टडीज़ हैं वो ये कहते हैं कि चूँकि हम केस स्टडीज़ में बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, इन हमारे सब्जेक्ट्स कम होते हैं, हम प्रॉपर कोई रिसर्च तो नहीं ना
वहाँ कंडक्ट कर रहे होते बेटा कि हमने 600 का सैंपल ले लिया, 700 का सैंपल ले लिया, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं कि उससे हम आप रिग्रेशन एनालिसिस नहीं निकाल सकते। ऐसा कुछ नहीं है। केस स्टडीज इवन एक इंडिविजुअल के ऊपर भी हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं वर्कआउट करके, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर। तो लोगों ने इस पर क्रिटिसाइज करना शुरू किया कि इस किस्म की जो स्टडीज़ होती हैं, उन्होंने कहा कि जी ये बाइस्ड स्टडीज़ होती हैं, क्योंकि हम इतने कम लोगों के ऊपर स्टडी करके उसे जनरलाइज नहीं कर सकते, बहुत कम लोगों को हम इवेलुएट कर रहे होते हैं। उनका ये कहना था कि इतने कम लोगों से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है उसकी बेसिस पर हम हाइपोथेसिस कंक्लूड नहीं कर सकते, और अगर कर भी लेते हैं तो वो इतनी ऑथेंटिक नहीं होता कि हम उसे जनरलाइज कर सकें। बहरहाल इट वाज अ क्रिटिसिज्म फ्रॉम पीपल. There are a number of different sources and methods that researchers can use to gather the information about an individual or group. The 6 major sources that have been identified by researchers are, अब डिफरेंट मेथड्स बताए गए हैं, या कहना चाहिए सोर्सेज बताए गए हैं कि जिनके थ्रू हम जो इंफॉर्मेशन है, चाहे वो हमारा इंडिविजुअल है या ग्रुप है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट कर सकते हैं। उसमें पहला है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. दिस स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग द सब्जेक्ट often in a natural setting. While an individual observer is sometimes used, it is more common to utilize a group of observers. अच्छा, this is direct observation. इसमें आपने खुद ऑब्जर्व करके डायरेक्टली तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। इस स्ट्रेटजी में हमारा जो सब्जेक्ट है, चाहे अब वो एक इंडिविजुअल है या ग्रुप ऑफ पीपल है, उसे एक नेचुरल सेटिंग के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं, उससे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। अब उसमें 2 चीज़ें दी गई हैं कि समटाइम एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वर नहीं यूज़ किया जाता, ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वर होते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ताकि ज़रा ये ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वर यूज़ करने का एक ही मकसद होता है कि बाइसनेस का जो एलिमेंट है वो कम से कम हो। इसके अलावा इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जा सकते हैं. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ gathering information in case studies. An interview can involve structured survey type questions and more open-ended questions. जैसे आप अपने रिसर्चेज में नॉर्मली इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, आप एक कोई सर्वे टाइप क्वेश्चन भी बना सकते हैं, यानी क्वेश्चनर बना लें, या फिर ओपन एंडेड क्वेश्चंस आप उसमें लिख लें। तो इस तरह से आप इंटरव्यू के थ्रू भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स हैं, लेटर्स, न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड एक्सेट्रा. अब उसमें अगर तो हम पर्टिकुलरली रिसर्च की बात कर रहे होंगे तो वहाँ आपको पता है कि डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में भी आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, जर्नल्स में भी आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, डिफरेंट लेटर्स होते हैं. इसके अलावा अगर मैं पर्टिकुलरली केस स्टडी की बात करूं एक अपने इंडिविजुअल पेशेंट की, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड उसका, यानी उसका जितना भी रिकॉर्ड होगा, उसकी लैब्स हैं, उसकी जो भी चीज़ें हैं, ज़ाहिर है उससे भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. इसके बाद आता है इंस्ट्रूमेंटल. It occurs when the individual or group allows researcher to understand more than what is initially obvious to the observers. Instrumental, आपने रिसर्च पढ़ी है, आपको मालूम होगा. हम एक इंस्ट्रूमेंट कोई भी है, जो हमारा क्वेश्चन फॉर्म में हो सकता है, जो भी है, हम वो बना लेते हैं. अब अगर थोड़ा सा हम वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो जो ऑब्जर्वर्स ने जो भी इनिशियली चीज़ों को ऑब्जर्व करके सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होती है, उससे हम बाहर निकलते हैं और हम यूज़ करना शुरू करते हैं इंस्ट्रूमेंट. हम कहते हैं जी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे. वो फिर क्या होता है कि आप सबको पता है, एक ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है,
जो सबके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑब्वियसली उससे जो ऑब्जर्वेशन की वजह से बाइसनेस हो सकती थी वो भी कम से कम हो जाती है, और जो रिलायबिलिटी है हमारे इंफॉर्मेशन की, जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी बढ़ जाती है। अच्छा, इसके अलावा आर्काइवल रिकॉर्ड्स है। सेंसस, आप सबको पता है सेंसस के रिकॉर्ड्स हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कोई भी सर्वेज हुए हैं, नेम लिस्ट है, फिजिकल आर्टिफैक्ट्स हैं, जो अभी जिक्र किया था, ये तकरीबन वही चीज़ें हैं कि डिफरेंट टूल्स यूज़ किए जाते हैं, मेजरमेंट्स के लिए इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जब भी हम किसी सब्जेक्ट की कर रहे हों, हमें ऐसा रियलाइज़ होता है कि जी हमें कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना चाहिए, कोई फिज़िकल टूल इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन involves a researcher actually serving as a participant in events and observing the actions and outcome. This is another type of research. अगर आपको कुछ याद हो रिसर्च, तो उसमें ये होता है कि जो रिसर्चर होता है वो खुद पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल ये उन सिचुएशन में या उस किस्म के रिसर्चेज में ज़्यादा यूज़ होता है मेथड जहाँ हम किसी की नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को, कल्चर को जो है वो ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं। यानी किसी से शायद आप पूछें तो वो उस तरह से आपको रिप्लाई ना करें, अगर जितना ज़्यादा आप खुद उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो उसमें फिर क्या करते हैं, जो हमारे रिसर्चर होते हैं वो खुद पार्टिसिपेंट बन जाते हैं, वो खुद उन लोगों का हिस्सा बन के कुछ टाइम उनके साथ, कुछ दिन उनके साथ स्पेंड करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो वहाँ होने वाले तमाम एक्शंस और आउटकम्स को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ तक समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, केस इंटरव्यू टिप्स, यानी केस स्टडी हमने करनी हो तो उसके लिए अगर इंटरव्यू कंडक्ट करना है तो उसकी कुछ टिप्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हाउ टू डू योर बेस्ट इन द केस इंटरव्यू। लिसन टू द प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक श्योर यू आर आंसरिंग द क्वेश्चंस दैट यू हैव बीन आस्क्ड। ठीक है, सबसे पहले यही है कि प्रॉब्लम को सुने, जो पेशेंट का प्रॉब्लम है उसको सुने। मेक श्योर कि आप अगर आप खुद किसी को इंटरव्यू दे रहे हैं तो उस वक्त भी आप इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आप उसी सवाल का जवाब दें जो आपसे पूछा गया है। और खुद आप अगर इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं तो आपका जो पेशेंट है उसकी प्रॉब्लम को फोकस करना, उससे उसको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Begin by setting a structure. Think of 4 to 5 sub questions that you need to answer before you can address the overall issue. अब ये कि ये वो इंटरव्यू नहीं है, देखिए पेशेंट भी तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना, उसके सवालात उसके जहन में, आप उसके सामने बैठ जाए, जी मैं आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ, वो भी तो आपसे सवाल कर सकता है कि भाई आप क्यों इंटरव्यू लेने आए हैं, या उसके माइंड में कोई भी क्वेरी हो सकती है, एम्बिग्विटीज हो सकती हैं, विच यू हैव टू आंसर देम, विच यू हैव टू क्लियर फॉर देम। सो आप अपने माइंड को पहले से माइंड मैपिंग कर लें, कि स्ट्रक्चर तैयार करके रखें कि माइट भी मेरा जो पेशेंट है, सब्जेक्ट है, वो मुझसे ये क्वेश्चंस पूछ सकता है। मेरा जो पूरा एक ओवरऑल इशू है उसको एड्रेस करने से पहले आप खुद को प्रिपेयर करें। Then stay organized. When discussing a specific issue, remember why you are discussing it and where it fits into the overall problem. कोई भी बात unnecessary करने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनाइज रहें, इधर उधर की बातें नहीं करनी। आपके पेशेंट से रिलेटेड जो भी बात करनी है उसका एक ऑथेंटिक आपके पास रीज़न होना चाहिए कि ओवरऑल जो भी आपके पेशेंट की प्रॉब्लम है उसका इसके साथ क्या ताल्लुक है। ठीक है जी।
ठीक है जी, ये केस इंटरव्यू की टिप्स हैं। इसको थोड़ा और पढ़ लेते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं चाह रही हूँ कि इसको एटलीस्ट हम कंप्लीट कर लेते, थोड़ी ज़्यादा ही है। चलिए थोड़ा और पढ़ लेते हैं। ओके, इसके बाद है कम्युनिकेट योर ट्रेन ऑफ थॉट्स क्लियरली। इफ़ यू हैव कंसीडर्ड सम alternatives and rejected them, tell the interviewer what and why. अगर आपके पास जो भी माइंड में ज़ाहिर थॉट्स हैं, कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं, अगर आप किसी चीज़ को आप रिजेक्ट भी कर रहे हैं तो उसका रीज़न आपके माइंड में बहुत क्लियर होना चाहिए और आप कम्युनिकेट करें। स्टेप बैक पीरियडिकली, समराइज व्हाट यू हैव लर्नड एंड व्हाट द इम्प्लीकेशंस अपीयर टू बी। फिर आप खुद से थोड़ा एक स्टेप पीछे जाके देखें और सारा समराइज करें कि मैंने क्या लर्न किया अपने पेशेंट की, अगर मैंने केस स्टडी प्रेजेंट करनी है तो मैंने क्या चीज़ें अपनी अचीव कर ली हैं। आस्क फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन व्हेन यू नीड इट, बट मेक श्योर दैट द इंटरव्यूअर नोज व्हाई यू नीड द इंफॉर्मेशन। अब जब आपने समराइज कर लिया तो अब आप उससे उसको, अगर आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो अब आप उससे पूछ सकते हैं, लेकिन क्लियर होना चाहिए और आप उसे जवाब दे सकें कि आप क्यों ये इन्फॉर्मेशन उससे पूछ रहे हैं। Then watch for the cues from the interviewer. Any information given to you by an interviewer is meant to help you. Listen carefully and follow their leads. हो सकता है कोई बात आपका पेशेंट इस तरह की कर दे जो आपको एक न्यू लीड या क्यू दे सकता है, तो गौर से उनकी बात सुने। Be comfortable with numbers. You will almost always have to work with numbers in a case. This requires comfort with basic arithmetic and sometimes large quantities. You may also be asked to perform the estimations. अगर तो थोड़े लोग हैं तो ठीक है, बट अगर आपको ये भी मुमकिन है कि केस स्टडीज प्रेजेंट करने के लिए एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल आपके सामने प्रेजेंट किए जाते हैं और उनके आपको स्टडी कंडक्ट करना पड़ती है एंड ऑल दैट, तो उसमें आपने लेकिन ज़ाहिर है आपको पता न्यूमेरिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। रिसर्च की जो फाइंडिंग्स होती हैं उसको प्रॉपरली आपने यानी अगर उसके रिजल्ट्स निकालने हैं, सारा कुछ है, तो उसके लिए आपको कंफर्टेबल होना होगा विद द नंबर्स। डोंट फिक्सेट ऑन क्रैकिंग द केस, इट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट टू डेमोन्स्ट्रेट अ लॉजिकल थॉट प्रोसेस दैन टू अराइव एट द सोल्यूशन। ऐसा नहीं है कि फ़ौरन से आप सोल्यूशन के ऊपर पहुंच जाएंगे, ऑब्वियसली उसको प्रॉपरली एक सोल्यूशन पर भी पहुंचे तो भी आपकी कुछ लॉजिकल थॉट्स होनी चाहिए आपके पास जो आप किसी के सामने डेमोन्स्ट्रेट कर सकें। Relax and enjoy the process. Think of the interviewer as a teammate in a problem solving process and the case as a real client problem that you need to explore and then solve. Our clients need programmatic solutions that they can act on as soon as possible. Always focus on actionable recommendations, even though sometimes they may not be the most elegant solution to the problem. So, वही बात कि अपने जो भी केस दिया गया है आपको रियल क्लाइंट समझ के और अगर वाकई रियल क्लाइंट पे काम किया तो फिर आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप उसे एक्सप्लोर करें तो ऑब्वियसली आपके लिए चीज़ें ईजी होंगी। चलिए हम यहाँ स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे से कंटिन्यू करेंगे। अभी सभी स्टूडेंट्स अपने अटेंडेंस मार्क करवा लीजिए और बराए मेहरबानी सिर्फ एक मरतबा अपना नाम लिखिएगा।
ओके जी स्टूडेंट्स, आपकी अटेंडेंस हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर।